Let's start with the lecture number 3 on dual nature of radiation and matter. So today we are going to conclude कि light है क्या. So today we are going to conclude कि light is having a dual nature. It propagates as a wave and it interact with the matter as a particle. ठीक है. तो with the and this we proved this we are going to show it experimentally and we are going to see it with the explanation of photoelectric effect. ठीक है. So जो आज का जो major हमारा lecture है, we are going to see the observation of Hertz, Hallwach and Leonard's observation that that is related with the photoelectric effect. ठीक है. So they have already explained what is the photoelectric effect, but they could not able to explain the reason behind that, why it has been happening. ठीक है. So then we will see the photoelectric effect का experiment जो Leonard ने has been performed, and उसके बाद we are going to see the Einstein's explanation कि why this is happening. ठीक है. Why it is totally different from the earlier stabilized theory, the classical theories of wave, light as a wave. तो उस theories के बिल्कुल अपोजिट जो हमारे को ऑब्जर्वेशन हुई थी, तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो होंगी दैट इज़ बीन गिवन बाय द आइंस्टाइन. ठीक है. विल सी द एक्सप्लेनेशन एंड विल सी द आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन देखेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो लाइट का हमारा जो किस्सा स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द न्यूटन ने हैज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट लाइट इज़ अ पार्टिकल, और जो पार्टिकल को हम बोलते थे उस टाइम पे कॉर्पस्कुलर, और जो थ्योरी को बोलते थे कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट. ठीक है. बट वो थ्योरी काफ़ी टाइम तक रही थी बिकॉज इट वॉज प्रोपोनेटेड बाय न्यूटन, सो नो वन चैलेंज दैट. बट उस थ्योरी को फिर भी इट वॉज लेटर ऑन हाइजेंस ने उसको अपोज किया था. हाइजेंस सेड के लाइट इज़ प्रोपोगेटिंग लाइक अ वेव, बट नो वन एक्सेप्टेड दैट until the Young performed the double slit experiment. ठीक है. When the Young performed the double slit experiment and show the interference of light, then it was concluded that light is a wave. ठीक है. But there was certain it proved certain phenomena. Diffraction दिखा दिया था, interference दिखा दिया था Young double slit ने, but it could not able to prove the transverse nature of the light. ठीक है. Then the Maxwell later on proved that light is an electromagnetic waves and it is a transverse nature. He has given the theoretical concept of everything. ठीक है. Theoretical concept behind that कि light is an electromagnetic wave and the propagation is transverse in nature. ठीक है. तो this explanation is been given by but it was only the theoretical explanation. जो मैक्सवेल की theoretical explanation को कि light is an electromagnetic wave, it was been later on experimentally proved by the Hertz. ठीक है. And while he was doing that experiment, he has seen something strange, and that led to the development of photoelectric effect, and then again it led to the development of that light is again a particle. He was trying to prove see the irony. He was trying to prove कि light is an electromagnetic wave, but उसमें एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें आई कि लेटर ऑन इट वाज डेवलप के कुछ पेक्यूलियर चीज़ें आई कि बट ही डिडंट एक्सप्लोर दोज थिंग्स, बट लेटर ऑन हालवॉच एक्सप्लोर्ड इट, लेनर्ड एक्सप्लोर्ड इट, एंड देन इट वाज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड दैट इट वाज फाइनल एक्सप्लेनेशन इज बिन गिवन बाय आइंस्टाइन ऑन द बेसिस ऑफ कि लाइट इज अगेन अ पार्टिकल. ठीक है. सो सी दिस लिंक. So then it was already stabilized. ठीक है. After this it was stabilized. Light is a wave. Huygens ने और Young's ने and the Maxwell. ठीक है. तो they have finally concluded light is a wave. But then again as I've told कि जब Hertz was doing an experiment to prove that light is an electromagnetic wave, which Maxwell has given only the theoretical explanation. जब Hertz देख रहा था, he has seen something peculiar. उसको lift up किया Hallwach ने, and Hallwach ने फिर experiment किया. Then he has seen something peculiar, and फिर Leonard ने experiment किया, and he has found something different into it. But they could not explain this observation. ठीक है. Then this explanation was given by the Einstein, and for which he has got the Nobel Prize. ठीक है. जो Einstein equation जो थी and this photoelectric effect की explanation के लिए he has got the Nobel Prize for this. And then after this it was stabilized. Light is dual. ठीक है. Light is dual in nature, so it propagate as a wave, and when it interact with the matter, it interact as a particle. ठीक है. and it fundamental particle जो हमने लास्ट में देखा था, लाइट इंटरेक्ट करती है एज अ पार्टिकल, और वो जो फंडामेंटल एलिमेंट है जिसके थ्रू इंटरेक्ट करती है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द फोटोन. ठीक है. फोटोन दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर लास्ट लेक्चर इन डिटेल. ठीक है. तो आज हम देखते हैं, ये ऑब्जर्वेशन देखते हैं इनकी, एंड देन वी आर गोइंग टू सी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है. ठीक है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, उसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे और क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, एंड वी आर गोइंग टू सी द रिलेशनशिप इन दोज एक्सपेरिमेंट, एंड देन वी आर गोइंग टू फाइनली कंक्लूड विद द Einstein explanation, and we'll see some questions on photoelectric effect, right?
सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, तो उसमें जाने से पहले विल सी इफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ वन वे ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन है, ठीक है, विद द लाइट, ठीक है. बिफोर दैट देर आर अदर वेज दैट फ्रॉम विच यू कैन टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल. सो विल सी द इलेक्ट्रॉन एमिशन किस किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड इनसाइड द मेटल बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है. एंड थिंक ऑफ मेटल लाइक अ, इस मेटल को इस तरीके से सोचो, इस लाइक अ पिट एंड इलेक्ट्रॉन इज एयर, ठीक है. टू मेक द इलेक्ट्रॉन आउट हेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर अगर आपने निकालना है इस पिट से, यू नीड टू गिव इट सम एनर्जी, ठीक है, अदरवाइज इट विल नॉट कम आउट, ठीक है. सो थिंक ऑफ मेटल लाइक अ पिट. फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू गेट आउट यू नीड a specific amount of energy to climb the wall, and this specific amount of energy is minimum amount of energy to climb this wall for the electron to come up here. This is what we call the work function. If you don't give this much amount of energy to the electron, then it will be trapped no matter how long it will wait, ठीक है, it will be trapped inside, ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन आर मोस्टली, इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में होते हैं, दीज आर द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स, दे आर एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से दे हेल्ड इनसाइड द ऑर्बिट, सो दे आर at a maximum distance because they are in the outermost orbit, ठीक है. They are loosely bound and therefore they call the free electron. So to overcome that push, and it is easy to pull out the outermost electron because यहाँ पे attraction force is less, ठीक है. तो to overcome and to pull back, to overcome the pullback of the positive charge, a positive charge is going to pull back this electron. To overcome this pullback you need to provide some more energy, and this minimum energy is what we call the work function, ठीक है. And work function we denote it in the electron volt, ठीक है. So we denote it in the units electron volt because बहुत छोटी वैल्यू होती है. सो दैट्स वाई वील नॉट यूज़ 10 to the power माइनस समथिंग ऑर्डर. तो इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज़ द वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया था? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी वेलोसिटी, ठीक है. दैट इज इंपॉर्टेंट, विदाउट एनी वेलोसिटी. आपने बस निकाल दिया, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के यहाँ पे बस रखा हुआ है, इस v इज इक्वल टू 0 है, ठीक है. विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट एनी वेलोसिटी आपने इलेक्ट्रॉन को बस निकाल दिया यहाँ पे. दैट इज़ व्हाट वी कॉल द वर्क फंक्शन, ठीक है. राइट. एंड नाउ वी हैव अ वर्क फंक्शन ऑफ डिफरेंट फोटोसेंसिटिव मेटल्स. फोटोसेंसिटिव मीन्स कि आप लाइट विच आर सेंसिटिव टू द लाइट, ठीक है. जैसे आपने लाइट इंसिडेंट करी एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू गेट एमिट, तो लाइट इज प्रोवाइडिंग दिस एनर्जी, मिनिमम एनर्जी है, ठीक है. सो देयर आर मल्टीपल वेज विद विच यू कैन प्रोवाइड दिस मिनिमम एनर्जी. There are multiple ways with which you can provide this minimum energy. So we'll see those multiple ways and we'll see what are the work function of different photosensitive material. So what are the ways you can supply the energy? One is your photoelectric, ठीक है. Photoelectric means that is your light only, ठीक है. whenever the light comes into play, तो जो लाइट हमने देखा था फंडामेंटल पार्टिकल, इट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स एंड द फोटोन हिट द सरफेस एंड दे ट्रांसफर द एनर्जी बिकॉज फोटोन इज कैरिंग द एनर्जी कितनी कैरी करता है, h nu, ठीक है. नाउ दे ट्रांसफर द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड जो भी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है दे विल कम आउट, ठीक है. ट्रांसफर द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन. बट द कैच हियर इज इट इज़ नॉट अबाउट हाउ we are going to discuss in detail today. Okay, the catch is it is not how bright the light, it is how high energy the individual photon is, okay. We are going to see that is the explanation today, and later on we are going to see the Einstein explanation for this. Okay, no electron will come out if the light if the light is red, no electron will come out, and if the light is blue or ultraviolet, the electron fly off instantly. So it depends upon the color, not on the intensity, ठीक है. So this we are going to see it in detail today, ठीक है. तो one way to emit an electron is the photoelectric, ठीक है. So for instance here ये आपका मेटल है, तो light is been irradiated on it and the electrons is been emitted from here, ठीक है. और इन electrons को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. जो लाइट हमारी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से निकलते हैं तो उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. सेकेंड होता है हमारा थर्मायोनिक एमिशन, विच इज़ वेयर द हीट इज़ द थ्रू हीट द एनर्जी इज़ बीन प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन. दिस मिनिमम एनर्जी इज़ बीन प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन एंड दे विल मूव आउट. सो यू हीट अप द मेटल अंटिल द इलेक्ट्रॉन्स आर वाइब्रेटिंग सो वायलेंटली एंड दे फ्लाई ऑफ, ठीक है. तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन एंड यू प्रोवाइड द थर्मल एनर्जी अंटिल दिस इलेक्ट्रॉन विल बी लिबरेटेड फ्रॉम एयर, ठीक है. द थर्ड वन इज़ अ फील्ड एमिशन. फील्ड एमिशन में क्या करते हैं आप मेटल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल देते हैं, ठीक है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिया तो नाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दे आर गोइंग टू पुल आउट दिस वीक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. सो when you put a metal into the strong electric field, electron get accelerated, ठीक है. electron get accelerated because force लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q into E, ठीक है. that is the force and because of this force they will gain the kinetic energy and they will overcome this potential barrier. जो ये potential barrier होता है, this potential well जो होता है, they are going to overcome.
लास्ट इज द सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हो बाय इम्पिंचिंग अ बीम ऑफ हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये मेटल है, यहाँ पे आप हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से हिट करते हो उसको, एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन गेट हिट एंड इट ट्रांसफर द एनर्जी एंड द मोमेंटम एंड द सेकेंडरी एंड आफ्टर दिस कोलिजन सम इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू गेट emitted and this we call the secondary emission, ठीक है। सो दिस इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी एंड द मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से the loosely bound or the outside orbit, outermost orbit electron will get ejected out, ठीक है। So these are the four ways with which you can eject the electrons. So this we are going to see this concept in semiconductor में देखेंगे, and this concept we are going to see in atomic structure when the collision is going to happen, ठीक है। तो ये atomic structure में हम लोग ये दोनों concept को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। This we are going to see in thermodynamics, but here our major part of the study will be the photoelectric, ठीक है। नाउ विल सी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो ऑलरेडी पहले से ही ऑब्जर्वेशंस जो आई थी, एंड लेटर ऑन इट वाज एक्सप्लेन बाय द दे हैव डन द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, एंड दे स्टेबलाइज के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी कुछ चीज़ होती है, बट दे कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। सो बिफोर आइंस्टाइन गेट विद दिस फोटोन थ्योरी, 3 साइंटिस्ट हर्ट्ज, हॉलबॉच एंड द Leonard has already done the heavy lifting in the job. They were the one who discovered what is the photoelectric effect, but they could not able to explain why it has been happening, ठीक है। तो first was the Heinrich Hertz. So it was an accidental discovery, as I told you. He was trying to prove कि electromagnetic wave जो कि theoretically मैक्सवेल ने दी थी, is trying to prove that experimentally, but उसको करते करते he has seen something peculiar and he just noted down his observation. तो हर्ट्स wasn't looking for the photoelectric effect, he was trying to prove the existence of radio waves, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या हुई, he noticed the spark between the two मेटल इलेक्ट्रोड जम्प्ड मोर, तो ये जो स्पार्क है बिटवीन द टू मेटल इलेक्ट्रोड ज़्यादा जंप करता है व्हेन द यूवी लाइट इज़ देयर, ठीक है, व्हेन द यूवी लाइट इज़ देयर। सो इट कंक्लूडेड दैट लाइट में समहाउ बी मेड इट ईजियर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू लीक और जंप थ्रू द एयर, ठीक है, बट ही डिडंट परस्यू, ठीक है। सो ही डिडंट परस्यू दैट, बट हालवॉच टुक द हर्ट्स ऑब्जर्वेशन एंड सिंप्लीफाइड थ्रू द फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ जिंक एंड द इलेक्ट्रोस्कोप। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि अब क्या किया इसने, हालवॉच हैज़ डन द एक्सपेरिमेंट, तो इसने क्या किया, ये टेकन द इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, ये हमारी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप था, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ही इज कनेक्टेड विद द जिंक एंड अनचार्ज, सेकंड ही हैज चार्ज द जिंक विद द नेगेटिव चार्ज, एंड थर्ड ही हैज चार्ज द जिंक विद द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज से होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी ये सेपरेटेड रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे जब पॉजिटिव से था तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलरेडी रहेगा, ये सेपरेटेड रहेंगी। अब हम देखते हैं कि विद द लाइट अगर मैं इरेडिएट करूँ लाइट को, तो उसके बाद से गोल्ड लीफ पे क्या होगा, ठीक है, इन गोल्ड लीफ पे क्या होगा। So that is what he has एक्सपेरिमेंटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जब अनचार्ज था तो दोनों मेरी पास पास रहेंगी गोल्ड लीफ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको यूवी रेज से हिट किया तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, तो दिस विल गेट पॉजिटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये दोनों रिपेल करनी शुरू कर जाएंगे। तो हमने देखा कि पहले ये दोनों साथ में लगी हुई थी, नाउ दे आर गोइंग टू रिपेल, ठीक है। अब ये रिपेल करना शुरू कर देंगे इन द अनचार्ज केस। नेगेटिवली चार्ज में क्या होता है, ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज करके ये ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ है एंड दे आर ऑलरेडी सेपरेटेड। अब क्या होगा, जब यहाँ पे मैं व्हेन यूवी रेज इज बीन इंसिडेंट ऑन इट, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो दैट मीन्स दे विल कम क्लोजर, ठीक है, यहाँ से क्लोज आना शुरू कर देंगे। थर्ड में जब ये पॉजिटिवली चार्ज थी मेरी, तो क्या होगा, जब यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो गई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव आउट, तो ये और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मोर पॉजिटिव चार्ज मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जब नीचे जाएगा तो इट इज गोइंग टू गेट रिपेल मोर, ठीक है। सो दीज आर द 3 ऑब्जर्वेशन दैट ही हैज़ सीन हॉलबॉच एंड ही हैज़ प्रूव दैट ultraviolet light causes a metal to lose negative particles and these negative particles are known as electron, ठीक है। तो ये ultraviolet light causes the metal to lose negative charge, negative particles, ठीक है। So this was the Hallwach's build up on the Hertz observation, ठीक है। देन द लेनर्ड दिस द वन हु ब्रोक द क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, बाय यूजिंग द वैक्यूम ट्यूब टू स्टडी द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके इजेक्ट जो कर रहे हैं इसको स्टडी किया था, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट जो ये होगा, दिस एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू गो इनटू डीप डिटेल्स के हाउ ही हैज़ ऑब्जर्व द मूविंग इलेक्ट्रॉन, किस तरीके से मूव किया था। ये सीन ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंसिटी, ये सीन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये सीन ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। ये वाला जो पोटेंशियल है इसके बेसिस पे, तो ही सीन ऑल द एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई टू कंक्लूड के हाउ द इलेक्ट्रॉन्स मोशन इज बीन अफेक्टेड बाय दीज 3, ठीक है।
सो दैट वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल, बट अभी के लिए हम लोग देखेंगे. सो इन द कमिंग पार्ट हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2, हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस. बट अभी के लिए हम लोग इस लिंक को कंप्लीट करते हैं कि हर्ट्ज से हॉलवॉच गया एंड हॉलवॉच से लेनर्ड आया, ठीक है. सो ही वॉज अ वन हु ब्रोक द क्लासिकल फिजिक्स बाय यूजिंग द वैक्यूम ट्यूब टू study the ejected electrons which we call the photoelectrons, ठीक है. He discovered the two things which made no sense during that time because it was already stabilized. Light is a wave, ठीक है. तो क्या था पहला, इंटेंसिटी पैराडॉक्स, ठीक है. इंटेंसिटी पैराडॉक्स क्या था, लेनर्ड फाउंड दैट if you put the light brighter, ठीक है, मोर इंटेंसिटी की लाइट डालोगे तो अभी तक क्या जो सेटअप जो था हमारा, तो उस टाइम के सेटअप थ्योरी थी कि जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा करंट होगा, ठीक है, उतना. बट ही हैज़ फाउंड दैट लाइट आपकी ब्राइट है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन द सेम. ये जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है दे रिमेन द सेम, बट यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, ठीक है, करंट इज इंक्रीजिंग बट काइनेटिक एनर्जी सेम रह रही है. बट दिस वाज वियर्ड बिकॉज क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती थी, जितनी ब्राइट लाइट होगी उतनी स्ट्रॉन्गर वेव होगी, और जितनी स्ट्रॉन्गर वेव होगी उतना दे आर गोइंग टू पुश द इलेक्ट्रॉन हार्डर, और जितना इट इज़ गोइंग टू पुश द इलेक्ट्रॉन हार्डर दे विल सेंड इट फास्टर, ठीक है. जितना हार्ड पुश करेंगे उतना फास्ट करेंगे. बट यहाँ पे देखा हमने कि इट इज़ नॉट पुशिंग इट फास्टर. जितनी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो आपका इलेक्ट्रॉन तभी भी फास्ट नहीं मूव कर रहा, ठीक है. So this was the intensity paradox. Second was the color paradox or the frequency paradox. He has found that the speed of the electron depend entirely on the color or the frequency of the light, ठीक है. When he put the blue light, they kicked off fast. When he put the ultraviolet light, they kicked out even faster, ठीक है. And he has also seen that there is a threshold frequency observed for every metal, and there was a specific frequency of the light. अगर उससे कम लाइट होगी, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट से कम होगी, देन देयर विल बी जीरो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, ठीक है, नो मैटर हाउ मच ब्राइट इज योर लाइट, ठीक है. सो दीज वर द टू पैराडॉक्स ही हैज सीन. तो नाउ वी विल गो डीप इनटू दीज पैराडॉक्स एंड ट्राई टू सी व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट दैट ही हैज डन, ठीक है. अभी भी किसी ने कंक्लूड नहीं कर पाए थे कि व्हाई दिस इज बीन हैपनिंग, ठीक है. तो दैट वाज डन एग्जैक्टली बाय द आइंस्टाइन. So we have seen this is what the photoelectric effect, when the electromagnetic radiation of suitable wavelength or frequency incident on the metallic surface, electron emitted, which we call the photoelectrons, ठीक है, and the current is we call the photocurrent, ठीक है, and this phenomena is we call the photoelectric effect, ठीक है. So certain observation we have seen कि alkali metals जो होंगे जैसे लीनियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गया, यहाँ पे photoelectric effect will be visible with the visible light, ठीक है. photoelectric effect हमारे को visible light से मिल जाता है with the lesser frequency, ठीक है. बट जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैडमियम हो गया, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको मिलता है यूवी लाइट से, ठीक है. दैट इनके इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए यू नीड टू गिव द यूवी लाइट, मीन्स हाई एनर्जी फोटोन देना पड़ेगा, ठीक है. नाउ दिस स्टडी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज नाउ वी आर गोइंग टू गो इनटू डीप डिटेल. तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ इज बीन इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है, सच दैट द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट एमिटिंग, फॉल्स ऑन द प्लेट 1, विच वी कॉल दिस प्लेट वी कॉल अ कैथोड, ठीक है, इसको हम कैथोड बोल देते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है. नाउ दिस इज़ बीन एनक्लोज इन अ ग्लास ट्यूब, ये हमने पूरा एनक्लोज किया हुआ सिस्टम को ग्लास ट्यूब पे, विच इज़ मेड अप ऑफ क्वार्ट्स विंडो, बिकॉज हम अल्ट्रावायलेट यूज़ कर रहे हैं लाइट, सो फॉर द प्रोटेक्शन वी यूज़ अ क्वार्ट्स विंडो, ठीक है. तो व्हेन द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ फॉल्स ऑन द प्लेट 1, इस पे प्लेट 1 पे गिरेगी, देन इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड एमिटिंग, ये इलेक्ट्रॉन एमिट करना शुरू कर देंगे, and it has been collected by the plate 2. This is my plate 2 which we call the collector plate and which we call the anode, ठीक है. and this anode का हम लोग we can connect it with the potential, ठीक है, with the potential से connect कर सकते हैं. this potential can be changed to negative also and positive also, ठीक है. तो we can connect, so this is called the collector plate or anode. the current will flow, देखिए यहाँ से whatever the electrons will be emitted here, ठीक है. if it's a positive it will collect all the electrons and it will send it into the complete circuit and the current will start flow in the circuit, ठीक है. anode as per our requirement, as per the experiment, we can keep it positive potential and the negative potential. So we are keeping right now for the experiment, initial experiment we are keeping it for the positive, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हुआ एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स हियर, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड एंड फ्रॉम देयर द करंट विल गो थ्रू एंड द करंट विल ग्रो आउट इन द सर्किट्स एंड वी कैन सी द करंट इन द एमीटर, ठीक है. Now 3 experiment is being done. One is to study the effect of intensity on the photocurrent, ठीक है. सो सुटेबल फ्रिक्वेंसी हमने दे दी जिसकी वजह से हमारा फोटो करंट स्टार्ट हो गया, ठीक है. सूटेबल फ्रिक्वेंसी हमने दे दी, तो हमने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, वी आर नॉट चेंजिंग द फ्रिक्वेंसी एंड वी आर स्टडिंग द, और इतनी फ्रिक्वेंसी दे दी कि हमारा
ejection of electron started. ठीक है, तो we are now going to study the current with the intensity. ठीक है, we are going to vary the intensity. ठीक है, intensity vary का मतलब हो गया आपके number of photons you are increasing per unit time. ठीक है, तो we have already seen photon में देखा था हमने, number of photon is nothing but your power by energy of each photon. पावर को हम लोग I into A लिख सकते हैं. तो जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे आप नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम में इंक्रीज़ कर रहे हो. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एज द नंबर ऑफ फोटोन इज़ बीन इंक्रीजिंग पर यूनिट टाइम, सो द ग्राफ इज़ कमिंग लाइक दिस. दैट मीन्स आपका जो फोटो करंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इंटेंसिटी ऑफ लाइट. जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ फोटोन से इंटेंसिटी बढ़ दी है, नंबर ऑफ फोटोन इज इंक्रीजिंग, आपका करंट इज बीन इंक्रीजिंग, एंड दीज आर बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो इस तरीके से वी विल सी इट. we have got the observation out of the experiment 1. ठीक है, now experiment 2 में हमने क्या किया, we have studied the effect of potential. ठीक है, effect of potential on the photoelectric current. ठीक है, so the effect of our potential जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसका हमने with this एनोड से कनेक्ट किया हुआ ना हमने, तो वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ दिस पोटेंशियल. कि अगर मैं इसको ऑब्वियसली अगर आप इसको मोर पॉजिटिव बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा इस पर अट्रैक्ट होंगे. ठीक है, तो अगर हम इसको मोर एंड मोर पॉजिटिव बनाएंगे, सो इनिशियली इफ़ यू गिव 10 वोल्ट दिया आपने, फिर इसको 15 वोल्ट दो, 20 वोल्ट दो, तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द करंट ऑन टू इट. ठीक है, इफेक्ट ऑफ द करंट ऑन टू इट, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. तो इफेक्ट ऑफ द पोटेंशियल ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो intensity and the frequency of the light has been constant here. ठीक है, we are not changing the intensity of the light. We'll change first experiment we are doing with the same intensity and the same frequency of the light. ठीक है, they are keeping it constant. तो हमने क्या देखा कि when we are going to plot the graph photoelectric करंट इन द वोल्टेज. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इफ़ आई एम गोइंग टू इंक्रीज़ द वोल्टेज. ठीक है, यहाँ पे अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, हम 10 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, फिर गोइंग टू इंक्रीज़ द वोल्टेज, तो क्या हो रहा है यहाँ पे करंट इंक्रीज़ करके एंड इट द करंट रीच द सैचुरेटेड स्टेट. ठीक है, तो हमने देखा कि जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं यहाँ से, ठीक है, जितने भी मेरे सपोज यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं, तो ये सारे के सारे, अब यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट, अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे 10 ही इलेक्ट्रॉन अगर मेरे एमिट हो रहे हैं यहाँ से, बिकॉज एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी. मेरी फ्रीक्वेंसी अभी फ्रीक्वेंसी बिकॉज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है मेरा फोटोन ई इज इक्वल टू एच न्यू पे. ठीक है, नाउ ई इज इक्वल टू एच न्यू पे नंबर ऑफ फोटोन्स कितने एमिट होंगे उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे 10 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ पे वट एवर हाउ मच इंक्रीज आई एम गोइंग टू डू द पोटेंशियल को जितना मर्जी बढ़ा दो, ये 10 के 10 ही तो जाएंगे. ये नंबर ऑफ फोटोन तोड़ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तोड़ना डिपेंड करेंगे मेरे. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज आई हैव केप्ट माई इंटेंसिटी एंड माई फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे कलेक्ट हो गए होंगे. जितने भी जो करेक्ट हो गए होंगे, सो ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स गॉट कलेक्टेड, आई एस रीच इज मैक्सिमम. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द सैचुरेशन करंट. ठीक है, इसके बाद हाउ मच वोल्टेज यू आर गोइंग टू इंक्रीज, बिकॉज सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मेरे कलेक्ट हो गए. अब उसके बाद मेरा करंट नहीं बढ़ेगा. लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में इफ़ यू स्टार्टेड मेकिंग द पोटेंशियल नेगेटिव, अब यहाँ पे अगर आप इसको नेगेटिव करते जाओगे, दैट मीन्स यहाँ पे धीरे धीरे पोटेंशियल विल, यहाँ पे बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग हियर बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज. अब ये मैं नेगेटिव ही कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड फ्रॉम एयर. तो धीरे धीरे अगर मैं इसका मैं धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल -1, -2, -3, तो क्या होगा, ये -1 पे 10 में से 9 पहुँचेंगे. ठीक है, -2 पे 10 में से 8 पहुँचेंगे. ठीक है, -3 में 10 में से 6 पहुँचेंगे. तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं नेगेटिव पोटेंशियल बनाऊँगा कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी वही तो पहुंच पाएगा ना यहाँ तक. जिस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी वो पहले ही, बिकॉज रिपेल हो रहा है यहाँ पे, रिपेल का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पे अपोजिट फोर्स लग रही है. तो जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी टू ओवरकम दैट अपोजिट फोर्स, देन ओनली इट विल रीच अप टू हेयर. तो इफ़ यू सी कि हमारा जो ग्राफ कम्स आउट टू बी लाइक दिस. ठीक है, जैसे जैसे मैं अपना पोटेंशियल डिक्रीज करता जा रहा हूँ, सो मेकिंग द नेगेटिव पोटेंशियल, द करंट एक तो सबसे पहले ड्रॉप जीरो नहीं हुआ, करंट ड्रॉप जीरो नहीं हुआ. तो इसका मतलब क्या है आपका कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर सबकी सेम काइनेटिक एनर्जी होती, तो जैसे मैंने -10 वोल्ट कर दिया, तो सबकी सेम काइनेटिक एनर्जी होती इलेक्ट्रॉन की, सारे के सारे एकदम ड्रॉप हो जाता. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ऑल आर हैविंग अ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, सब डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से आ रहे हैं. सो दैट्स वाई द करंट डज नॉट ड्रॉप टू जीरो इमीडिएटली, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की सबकी वेलोसिटी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, वेरीज फ्रॉम जीरो टू सर्टेन मैक्सिमम. ठीक है, और यहाँ पे दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल इज द रिटार्डिंग पोटेंशियल एंड द कट ऑफ पोटेंशियल, जहाँ पे मेरा सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स करंट रुक जाएगा. ठीक है, दिस इज माय कट ऑफ पोटेंशियल, जहाँ पे मेरा करंट विल गेट जीरो, कि नो इलेक्ट्रॉन इज कमिंग आउट. और वो किस सिचुएशन में होगा, जब मेरा मैक्सिमम
काइनेटिक एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसी की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी की 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दिस इज द मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये 10 इलेक्ट्रॉन वाला भी रुक जाएगा, जब मैं इसको 10 वोल्ट यहाँ पे ऐसा नेगेटिव दे दूंगा तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वाला भी रुक जाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स नाउ देयर इज नो करंट इनटू इट। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि जिस पोटेंशियल पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी, मैक्सिमम स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द कट ऑफ पोटेंशियल एंड विच इज दिस कट ऑफ पोटेंशियल इज करस्पॉन्डिंग टू द वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, बिकॉज यहाँ पे जो आपकी दिस कट ऑफ पोटेंशियल इज corresponding to the frequency of light, बिकॉज यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा यहाँ पे, दिस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। दिस डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यहाँ पे जो हमारा कट ऑफ पोटेंशियल होगा दैट इज EV0, ठीक है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जो मेरा यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला होगा तो 1/2 m इंटू वी मैक्स स्क्वायर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर इज इक्वल टू EV0, ठीक है। एंड दिस इज माई V0 इज माई स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, फॉर द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, एंड द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज बीन गिवन बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है। सो इन द कमिंग पार्ट वी आर गोइंग टू सी द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, हेयर वी आर ओनली सीइंग द ऑब्जर्वेशन, इसका वाई अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कट ऑफ पोटेंशियल इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट 3 वी आर गोइंग टू सी दिस ऑब्जर्वेशन कि हाउ योर कट ऑफ पोटेंशियल इज बीन डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। अभी हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन इन द कमिंग पार्ट वी आर गोइंग टू सी। अब मैंने क्या किया, इसी सेकेंड एक्सपेरिमेंट में सेम एक्सपेरिमेंट रिपीटेड बट विद अ डिफरेंट इंटेंसिटी, ठीक है, डिफरेंट इंटेंसिटी बट सेम मेरी फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी है तो आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन्स की सेम होगा, दैट इज़ 1/2 m वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स ये चेंज नहीं होगा तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा V0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका V0 सेम रहेगा। आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है कि आपकी कितना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बिकॉज फ्रीक्वेंसी सेम है तो यहाँ पे ये सेम रहेगा तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, बट यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है, तो इंटेंसिटी चेंज हो रही है दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी चेंज हो रही है तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो दे आर गोइंग टू इजेक्ट मोर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। तो इनिशियली अगर 10 फोटोन जा रहे थे तो दे आर रिलीजिंग ओनली 10 इलेक्ट्रॉन, वो सारे के सारे निकल के मेरे आ गए तो दे विल गिव अ सैचुरेटेड करंट, ठीक है। अब मैंने ये क्या किया, मैंने 15 फोटोन डाल दिए, 15 फोटोन डाल दिए तो 15 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मेरे, 15 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो आई विल बी गेटिंग द मोर सैचुरेट 15 इलेक्ट्रॉन जब सारे के सारे कलेक्ट हो जाएंगे देन आई विल बी गेटिंग द मोर सैचुरेटेड करंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 20 फोटोन डालूंगा, 20 फोटोन अगर मेरे हिट कर रहे हैं तो 20 फोटोन से मेरे 20 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। 20 इलेक्ट्रॉन निकल गए, वी आर कीपिंग के हर एक फोटोन की इतनी एनर्जी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी से भेज रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 फोटोन 20 इंटेंसिटी बढ़ाई मैंने 20 फोटोन, जिसकी वजह से 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये सारे के सारे कलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द हायर सैचुरेशन करंट, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनता है विद द इंटेंसिटी वी सी सैचुरेशन करंट ओनली इंक्रीजेस बट आवर पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, ठीक है। नाउ विल सी द एक्सपेरिमेंट नंबर 3। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमने देखा कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। नाउ व्हेन वी चेंज द फ्रीक्वेंसी, धीरे धीरे हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करनी शुरू करी, ठीक है। इनिशियली इफ़ वी आर हैविंग लो फ्रीक्वेंसी देन वी स्टार्टेड इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी से क्या देखा हमने कि वी हैव सीन कि हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, माई फ्रीक्वेंसी 1 था, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये था, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा और बढ़ गया, बट वी हैव सीन द सैचुरेशन करंट मेरा कांस्टेंट रहा, ठीक है। तो दैट मीन्स आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, आपकी इंटेंसिटी सेम थी, नंबर ऑफ फोटोन सेम जा रहे थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, 10 फोटोन से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो ये 10 के 10 कलेक्ट होकर मेरे सैचुरेशन करंट मेरा 10 के 10 कलेक्ट हो गया, सैचुरेशन करंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका इंटेंसिटी नहीं चेंज हो रही, दैट मीन्स फोटोन नहीं चेंज हो रहे, इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज हो रहे, बट आप क्या हो रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है दैट मीन्स आपका काइनेटिक एनर्जी जो होगा, मैं इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी, जो मैक्सिमम वाला होगा वो बढ़ जाएगा, तो उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए यू नीड टू इंक्रीज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 का जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा विद दिस फ्रीक्वेंसी 3, इसका जो हाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसको रोकने के लिए मेरे को पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। सेम वे इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई कि आपका जो
नंबर ऑफ फोटोन सेम निकल रहे हैं, यहाँ से भी 10 निकल रहे हैं, यहाँ से भी 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ से भी 10 निकल रहे हैं, बट यहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसकी होगी सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमम वाला होगा इसकी होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे जो होगा इसकी होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे जैसे आपका इसका मैक्सिमम निकल तीनों में 10 ही रहे हैं, दैट्स वाई हमारा सेचुरेशन करंट सेम है, बिकॉज क्यों 10 निकल रहे हैं, इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी सेम है, फोटोन नंबर ऑफ फोटोन सेम है, ठीक है। तो इसलिए इतने ही निकल रहे हैं, तो सेचुरेशन करंट मेरा सेम रहेगा, बट यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकल रहा है। तो इसको रोकने के लिए आई हैव टू गिव मोर रिटार्डेड पोटेंशियल, ठीक है। और जो इसमें से निकल रहा है मेरा, सपोज इसमें से जो निकल रहा है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकल रहा है और इसमें से आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैक्सिमम वाला निकल रहा है, तो इसको रोकने के लिए आपको 2 वोल्ट देना पड़ेगा, ठीक है। सो अब हमने देखा सेकंड केस में इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द इंसिडेंट लाइट स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, तो हमने देखा आई को हमने कांस्टेंट रखा, वो इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, हमने देखा लाइट वी हैव हमने लाइट को इंसिडेंट किया विद अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कीपिंग द इंटेंसिटी सेम। तो फॉर ईच फ्रीक्वेंसी वी हैव सीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हायर द फ्रीक्वेंसी हायर इज द ग्रेटर इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। बिकॉज एनर्जी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसको रोकने के लिए यू नीड टू इंक्रीज द पोटेंशियल, ठीक है। रिटार्डेड पोटेंशियल आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है। सो another relation we have seen with frequency and my stopping potential is directly proportional. As your frequency has been increasing, your retarding potential is increasing, but it is starting from here because इससे पहले तो मेरा अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी होगी, दिस इज व्हाट वी कॉल द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट होगा, उससे पहले इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। सो अभी जस्ट take it as an information because इस सबकी explanation, because we are taking the experiment, इन सबकी explanation we'll see कि why it has been happening with the Einstein explanation के through हम लोग इन सबकी explanation देखेंगे why it has been happening, ठीक है। क्यों minimum frequency मेरे को चाहिए to emit, ठीक है, एंड व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी, इन सबकी explanation we are going to see in the coming, but just take it as an information right now, ठीक है। सो ये हमारा वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के बीच में वी हैव सीन द अनदर ग्राफ। तो इसमें जो ग्राफ आया हमारा वी हैव सीन कि इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्ट्रेट लाइन आया कि जैसे जैसे मेरी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है मेरा रिटार्डिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। हमने देखा ना जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, बट यहाँ पे हमने देखा कि एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी के बाद ही पोटेंशियल बढ़ेगा, उससे पहले नहीं बढ़ेगा। वाई? बिकॉज इससे पहले अगर मेरी इससे कम फ्रिक्वेंसी होगी तो मेरा इलेक्ट्रॉन ही एमिट नहीं हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा तो उसको रोकने के लिए तो पोटेंशियल जीरो ही होगा। वो तो यहाँ के बाद से अब आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट हुआ है तो उसको रोकने के लिए आपको रिटार्डिंग पोटेंशियल चाहिए। सेम वे यहाँ पे मेटल वन में इफ़ यू सी मेटल, सो यहाँ पे इसका इफ़ यू सी इसका जो है मेटल बी का यू आर हैविंग, इसको ज़्यादा फ्रिक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए, इसको कम फ्रिक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए मेटल ए को, ठीक है। तो यहाँ पे इफ यू सी दे बोथ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी, दे बोथ आर हैविंग, जितने इट डज नॉट डिपेंड, आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी का जो ग्राफ होता है इसमें इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मेटल, ठीक है। इन सबका जो फ्रिक्वेंसी कम्स आउट टू बी सेम। विल सी वाई ऑल्सो इन द कमिंग पार्ट, विल सी वाई के हर एक मेटल के लिए दिस इज सेम, ठीक है। हमारा स्लोप सबका सेम रहता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। वी हैव सीन के आपके जो जितना भी हमने एक्सपेरिमेंट देखा उसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, बिकॉज यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम आती है आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज तो ज़्यादा आपका पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए होगा रिटार्डिंग पोटेंशियल, दैट मीन्स, और फ्रीक्वेंसी जब आपकी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, उतना ज़्यादा आपका पोटेंशियल होगा, ठीक है। इंटरसेप्ट एफ नॉट ये हमारे को बता रहा है कि इससे कम वाले इलेक्ट्रॉन्स, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी इससे कम है तो नो इलेक्ट्रॉन्स विल गोइंग टू लिबरेट, ठीक है। तो एफ नॉट इज टेलिंग मी जस्ट टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो लेस देन दिस नो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड, एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा आप इंटेंसिटी की भेज दो, अगर आपने इससे कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम भेजी आपने लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट अगर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रही तो आप जितनी मर्जी हाई इंटेंसिटी मतलब जितने मर्जी फोटोन भेज दो, बट दैट इज़ नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल हैपन, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस अगर आपने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भेजा और आपके यहाँ पे निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। तो आप जितने मर्जी भेजो 1000 नंबर ऑफ फोटोन भेज दो तब भी यहाँ से एक भी नहीं निकाल पाएगा। बट आपने एक फोटोन भेजा विद 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, एक फोटोन भेजा आपने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, दैट इज़ गोइंग टू एमिट दिस, ठीक है। तो आपको एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए टू एमिट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इट डज़ नॉट डिपेंड कि आप कितने भेज रहे हैं, ठीक है।
नाउ जो वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम इज़ अगेन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी, तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा और उतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी, डज नॉट डिपेंड, जो वेलोसिटी मैक्सिमम डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी, डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ फोटोन्स, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स डिपेंड अपॉन जो आपकी इंटेंसिटी होती है, नंबर ऑफ फोटोन्स डिपेंड अपॉन दैट, कि आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, ठीक है। एंड नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो अगर आपके एमिशन स्टार्ट हो गया वर्क फंक्शन से ज़्यादा, आपकी फ्रीक्वेंसी है दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आपने ज़्यादा दी, तो आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपका नंबर ऑफ फोटोन्स मोर नंबर ऑफ, आप ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं आपके, तो नाउ दे आर गोइंग टू एमिट, दे आर गोइंग टू टेक आउट मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Now this process, this is also an important thing. So in the experiment we have seen, so in the experiment we have seen the whole process is instantaneous, ठीक है। जैसे ही अपना फोटोन हिट करेगा इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, तो उन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड आता है दैट कम्स आउट टू बी 10⁻⁹ सेकेंड, ठीक है। सो इंसिडेंट और एमिशन में इतना कम टाइम सेकेंड है। सो एमिशन इज टोटली, एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इट्स क्वाइट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक है। सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमने ऑब्जर्वेशन जो है हमारे, हमने देखे द फेलियर ऑफ द वेव थ्योरी विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारी इंटेंसिटी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये अब ऑलरेडी हम लोग मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। पहली आई हमारी इंटेंसिटी प्रॉब्लम, मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी उसमें क्या थी, लाइट इज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। तो दैट मीन्स आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगी तो यू हैव टू डू इट कैन डू मोर अमाउंट ऑफ द वर्क, मोर अमाउंट ऑफ द वर्क मीन्स इट विल गिव मोर काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बिकॉज फोर्स ज़्यादा होगी तो मोर वर्क डन मीन्स मोर काइनेटिक एनर्जी। बट हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन आवर इंटेंसिटी एंड इट इज डिपेंडिंग upon our kinetic energy is depending upon the frequency only, ठीक है। that we have seen kinetic energy is depending upon the frequency only, not on the intensity, ठीक है। so that is the first failure of the wave theory. Second is the frequency problem. तो वेव थ्योरी ने क्या बोला कि हमारा जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन जो आपकी आ रही है फोटोन की, ठीक है, दैट इज़ कंटिन्यूस एंड द यूनिफॉर्म। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे विल एब्जॉर्ब द एनर्जी कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। सपोज इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और ये आपके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन आ रहे हैं, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेगा, तो इवेंचुअली सूनर और लेटर इट विल एक्यूमुलेट इनफ एनर्जी सो टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, एंड टू एस्केप आउट ऑफ इट, ठीक है। सो दैट वाज द वेव थ्योरी, ठीक है। बट हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो यहाँ पे वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या आ गया, तो यहाँ पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी भी फ्रीक्वेंसी पे आ जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपका कम फ्रीक्वेंसी का भी हो, पहले फोटोन ने हिट किया, कुछ एनर्जी दे दी, फिर फोटोन ने हिट किया, फिर कुछ एनर्जी, तो एनर्जी एक्यूमुलेट होती गई, तो सूनर और लेटर उसने इतनी एनर्जी एक्यूमुलेट कर ली टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड हैपन एट एनी फ्रीक्वेंसी, बट व्हाट वी हैव सीन इन द एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल हैपन ओनली आफ्टर द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उससे पहले विच वी कॉल द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे पहले कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट was the frequency problem. And third was the time delay. तो वेव थ्योरी में क्या था कि रेडिएशन है that is continuous and the uniform radiation has been incident on the on your metal, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, एटम इज़ रिसीविंग दैट रेडिएशन, ठीक है। नाउ एटम जो रेडिएशन रिसीव कर रहा है, रेडिएशन इज़ वी नो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितने एटम के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे आपकी जो रेडिएशन पड़ रही है, ठीक है। बिकॉज एटम का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल है तो एटम को टाइम लगेगा, बिकॉज अब एटम का इतना छोटा सा एरिया है, ठीक है। लाइट आपकी ज़्यादा आ रही है बट ये छोटे से एरिया में इतनी सी तो लाइट ये बस ले पाएगा, बिकॉज छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो कम ही लाइट ले पाएगा। तो नाउ इट विल टेक, एटम को लाइट इकट्ठी करने में टाइम लगेगा फिर, बिकॉज उसका छोटा सा एरिया है, तो एटम विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू एक्यूमुलेट सफिशिएंट एनर्जी एंड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। बट हमने क्या देखा ऑब्जर्वेशन में, हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी, हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है इट वाज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, 10⁻⁻⁻⁹ में इजेक्ट हो रहा है। सो दैट इज ऑल्सो फेलियर ऑफ आवर वेव थ्योरी, ठीक है। सो दीज आर द 3 प्रॉब्लम, इंटेंसिटी प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम एंड द टाइम प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ द आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन वी विल सी।
सो आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन इज अगेन प्रोवाइडेड अ पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, ठीक है, वेव नेचर फेल हो गया, इट प्रोवाइडेड द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट एंड फोटोन वाज द पार्टिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है. सो नाउ Einstein explanation, he used the Planck's constant that the quantization of energy, ठीक है, light is light quantum and it is behaving, light quantum is behaving as a particle and which the quantum of that light is what we call the photon. Quantum is nothing but the small discrete packet, ठीक है, that is what we call the photon, ठीक है. So when the light of frequency mu in the vacuum, ठीक है, when it contains as a stream of photons, ठीक है, any radiation of frequency mu in the vacuum, it contains as a stream of photons which is having the speed of light, जिसकी इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू और उसकी मोमेंटम होती है h न्यू बाय c, ठीक है. नाउ दिस वाई दिस प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है. तो यहाँ पे जो भी लाइट है हमारी, it's like a pulse of the packet of radiation, ठीक है. It is like a, if you see, it is like a ping pong ball, ठीक है, जैसे हमारी इसकी टेबल टेनिस की बॉल होती है ना, इट्स लाइक अ पिंग पोंग बॉल के पैकेट ऑफ रेडिएशन, स्मॉल बॉल इट इज़ बीन हिटिंग, ठीक है, एंड दे आर बीन कोलाइडिंग विद द इलेक्ट्रॉन, ठीक है. इधर यू कैन टेक पल्स ऑफ द स्मॉल पिंग पोंग बॉल्स काइंड ऑफ अ थिंग, यू कैन use this analogy to get a better understanding, ठीक है. It is like an EM pulse. So now this packet of radiation is what we call the photon, ठीक है. Now this gives the entire energy to the electron, that is quite important. It gives the entire energy to the electron, no longer, and after giving the entire energy this photon does not exist, ठीक है. And it is a 1-to-1 interaction with the electron. ये नहीं है कि आपका इलेक्ट्रॉन आया, इस फोटोन ने कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी, कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी, नो. और या फिर आपके एक इलेक्ट्रॉन है, एक फोटोन आया, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी और इसने कुछ इलेक्ट्रॉन को दे दी, दिस इज़ नॉट. तो 1-to-1 इंट्रैक्शन होता है आपका इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में, ठीक है. इसकी जितनी भी एनर्जी से आया इसने सारी की सारी एनर्जी दे दी, या तो सारी की सारी एनर्जी दे के खत्म हो जाएगा या फिर दे ही नहीं पाएगा, ठीक है. एनर्जी दे देगा बट इलेक्ट्रॉन को जितनी चाहिए होगी उतनी नहीं मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा, ठीक है. सो दैट मीन्स यहाँ पे 1-to-1 इंट्रैक्शन होता है, नो टू फोटोन हिट 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 फोटोन एब्जॉर्ब बाय 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है. तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का आया और 1 EV का फोटोन आया मेरा, और यहाँ पे मेरे को 2 EV चाहिए इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, निकालने के लिए. तो ये आ जाएगा, लेकिन 2 EV मेरे को मिल नहीं पाएगी एनर्जी, तो इट विज गोइंग टू गेट वैनिश, ठीक है. 1 फोटोन एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन बट नथिंग विल हैपन, ठीक है. तो अगर उससे ज़्यादा एनर्जी का मेरे पास फोटोन होगा, इट इज़ गोइंग टू हिट द इलेक्ट्रॉन, देन ओनली द इलेक्ट्रॉन विल एमिट, ठीक है. सो इट इज़ अ वन इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन इज 1-to-1 इंट्रैक्शन होता है हमारा, नो टू फोटोन हिट द 1 इलेक्ट्रॉन, वेज ए वेरी रेयर प्रोबेबिलिटी, ठीक है. Now no emission below why, so that is why it is an instantaneous. So why there is a no emission below threshold frequency, because electron कैन नॉट एब्जॉर्ब अ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है. इलेक्ट्रॉन जो भी फोटोन की एनर्जी आएगी उसमें ये नहीं है कि फोटोन की फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ले ली, फिर दूसरे फोटोन से फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ले ली, फिर तीसरे फोटोन से फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ले ली. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एब्जॉर्ब अ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फोटोन एंड कांट इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी बाय कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 by 1 फोटोन, ठीक है. ऐसा नहीं है कि एक फोटोन से थोड़ी थोड़ी एनर्जी लेता जाए और अपना पोटेंशियल बैरियर ओवरकम कर दे और फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता जाए. इट इज़ नॉट देयर. ईच फोटोन एब्जॉर्ब कंप्लीटली, ठीक है. जितना भी फोटोन आ रहा है अपनी जितनी एनर्जी के साथ आ रहा है वो पूरी की पूरी एनर्जी उसको दे देगा, ठीक है. एंड 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. पहला तो हमारा ये था कि 1 फोटोन एब्जॉर्ब बाय 1 इलेक्ट्रॉन, और अपने ईच फोटोन एब्जॉर्ब कंप्लीटली बाय द इलेक्ट्रॉन, जितनी भी एनर्जी होगी वो एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, ठीक है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई नो एमिशन बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अगर वो फ्रीक्वेंसी का मेरा इलेक्ट्रॉन, अगर ये आपका जो फोटोन है, इफ़ द फोटोन इज़ कमिंग विद 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपके इलेक्ट्रॉन को एमिशन के लिए चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे एमिशन ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज 1-to-1 इंट्रैक्शन हो रहा है, तो नहीं हो पाएगा. ये नहीं है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस फोटोन से ले ली फिर दूसरे फोटोन से ले ली, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. 1-to-1 इंट्रैक्शन है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नहीं होगा. अगर मेरा एक फोटोन मेरा हाई फ्रिक्वेंसी का आ रहा है, सपोज अल्ट्रा वायलेट है मेरी, तो यहाँ पे मेरा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आ रहा है, और यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इट इज़ नाउ द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू टेक दिस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर निकल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा जो आएगी उसको ये काइनेटिक एनर्जी की तरह यूज़ कर लेगा, ठीक है. तो यहाँ से जैसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपका फोटोन है, वो हिट करेगा इस पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको मिनिमम चाहिए निकालने के लिए. 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकल जाएगा, और उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा होगी वो उसके काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज़ हो जाएगी, ठीक है. सो नो एमिशन बिलो थ्रेशोल्ड मीन्स के फोटोन के पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए थ्रेशोल्ड वाली, ठीक है. नाउ द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी मीन्स कि ईच फोटोन
ईच एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, जितनी भी एनर्जी ऑफ ईच फोटोन है दैट इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा आपका एनर्जी क्या होगी फोटोन की एच न्यू। अब ये जो फोटोन होगा दैट इज़ गोइंग टू इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे मेरी एच न्यू आ रही है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं अब फ्रिक्वेंसी बढ़ाता जाऊँगा मेरी ये एनर्जी ऑफ फोटोन इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है। तो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से 5 से तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा बच गई, तो यहाँ से दिस इज कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। नाउ अगर मैं इसकी एनर्जी इसकी मैंने फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, ठीक है, तो जिसकी वजह से मेरी एनर्जी हो गई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 तो मेरे को यहाँ पे चाहिए, उसके बाद मेरी आ जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। जो हमारा इलेक्ट्रॉन एमिटर होगा मे बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट मैक्सिमम जो होगा मेरा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। सेम वे अगर मैंने यहाँ पे फिर से फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर दी, मैंने फ्रिक्वेंसी हैव इंक्रीज एंड बिकॉज ऑफ दैट माई एनर्जी गॉट फोटोन की एनर्जी आ गई 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 तो मेरी इसमें चली जाएगी, बाकी जो मेरी 5 बचेगी दैट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो दिस रिलेशन वी हैव सीन इट हेयर, वी हैव ऑलरेडी सीन कि जिस तरीके से आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ दी है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ दी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ दी है तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमने देख लिया था आपकी काइनेटिक एनर्जी, जिस तरीके से आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ दी है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ दी है, ठीक है, और उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रोकने के लिए हमारे को मोर एंड मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने देखा 1-to-1 इंट्रैक्शन हो रहा है हमारा, ठीक है। 1-to-1 इंट्रैक्शन मीन्स कि इंटेंसिटी बढ़ दी है आपकी, ठीक है। अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी नहीं है, ठीक है, तो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी अगर मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और आपका फोटोन एनर्जी लेके आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है, ये अपना मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है। नाउ द फोटोन इज कमिंग विद नाउ 10 photon are coming, ठीक है। if the intensity is 10 photon are coming and another one intensity 2 is 100 photons are coming and it is coming with ईच फोटोन इज हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो हेयर ऑल्सो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रही है, ठीक है, हेयर भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हर एक के पास एनर्जी है, 1-to-1 इंट्रैक्शन होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 100 फोटोन आ रहे हैं मेरे, हर एक की एनर्जी मेरी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, रिक्वायरमेंट एनर्जी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पे भी ये 1-to-1 इंट्रैक्शन करके 100 फोटोन निकाल देगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ 1-to-1 इंट्रैक्शन विल सी के हाउ इंटेंसिटी इज बिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज and that is directly proportional to your photoelectric current, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to V, so it is very linearly with our frequency, maximum kinetic energy, and maximum kinetic energy is been linked with our stopping potential, ठीक है। So these were the major explanation behind what is happening in the what happened and what are the observation that we have got it from the photoelectric effect experiment, ठीक है। नाउ विल सी द आइंस्टाइन की जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी आइंस्टाइन ने, तो यहाँ पे 1-to-1 इंट्रैक्शन होता है, तो हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई h न्यू, ठीक है। तो गेटिंग इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द एटम्स वी नीड मिनिमम एनर्जी चाहिए, ठीक है। हमने देखा था ना ये पोटेंशियल वेल है, तो अगर यहाँ से मेरा ये फोटोन आ रहा है, दिस फोटोन नीड्स टू हिट इट, और ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है और उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तभी ये यहाँ से इसको बाहर निकाल पाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स फोटोन एनर्जी आपकी h न्यू है, गेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द एटम यू नीड मिनिमम एनर्जी विच इज़ व्हाट यू कॉल द वर्क फंक्शन, वी कॉल इट phi नॉट और ओमेगा नॉट, ठीक है। गिविंग दिस आफ्टर गिविंग दिस एनर्जी, तो ये एनर्जी एक तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए यूज़ होगी विच इज़ कॉल्ड अ वर्क फंक्शन, इसके बाद बस ये बाहर निकल जाएगा विद अ जीरो काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसकी बचेगी दैट एनर्जी इज़ बीन यूज्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी, तो वी कैन राइट इट डाउन HF, ठीक है। HF इज़ माई फ्रिक्वेंसी ऑफ माई फोटोन, दैट विल बी इक्वल टू W नॉट इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकालने के लिए प्लस फिर इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट माय क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन विच हैज़ कम अप। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो गई आपकी HF माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। ये नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन इसी काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे। अगर हम ग्राफ देखें अपने नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वर्सेज द काइनेटिक एनर्जी, तो विल सी लाइक दिस, तो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इन द मिडिल रेंज ऑफ आवर काइनेटिक एनर्जी। अगर मेरी 0 से
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ रहे हैं तो मैक्सिमम विल बी इन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेरे बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन होंगे जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी. सो वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी हेयर विच इज़ हैविंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कम, तो इट्स लो भी कम की होती है और मैक्सिमम विल बी लाइंग इन द मिडिल रेंज, मैक्सिमम लाइंग इन द मिडिल रेंज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा दूँ तो इंटेंसिटी की वजह से मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, बट ओनली द ग्राफ विल बी शिफ्टेड अपवर्ड. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे मेरे. ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी के लिए number of electron will be increased, only there will be a shifting in the curve. ठीक है, if we increase the intensity, number of electron is going to get increased. ठीक है, there is shift in the curve upward. ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन आ गई. ठीक है, इसको फिर राइट डाउन वर्क फंक्शन को आई कैन राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ our frequency, in terms of our energy also. तो h f naught, ठीक है, that is my threshold frequency. h f naught is equal to work function. Now I'll put this value h f naught. ठीक है, f naught को you can write it down h c, और इसको लिख सकते हैं 1 by lambda minus 1 by lambda naught. ठीक है, now this is what is called the Einstein equation, Einstein photoelectric equation. ठीक है, so this is Einstein photoelectric equation. This is Einstein photoelectric equation. that is kinetic energy maximum जो आएगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, that is h 1 by c 1 by lambda minus 1 by lambda naught. ठीक है, so that is Einstein photoelectric equation. और hc की वैल्यू हमारे पास आती है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू speed of light, it is 12400. right, now using this using this Einstein equation. ठीक है, this Robert Millikan has verified this Einstein equation and find out the value of the Planck's constant. ठीक है, तो how he has done it, so we have seen how your frequency has been related with your kinetic energy and the kinetic energy and your potential. So we have seen here it is directly proportional, it is moving, it is like this. Here we have seen कि how your frequency is been related with your potential. ठीक है, in the experiment we have seen. So here suppose this is how your this is the minimum kinetic energy, this is the minimum energy required for the electron emission, photoelectric effect को start करने के लिए. this is the minimum energy. ठीक है, तो यहाँ पे kinetic जो हमारी इक्वेशन थी, that is मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी योर फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. अगर मैं इसको यहाँ पे पीछे एक्सटेंड कर दी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी, अगर हम इसको देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल में, तो ई वी नॉट. ठीक है, ई वी नॉट इज योर मैक्सिमम पोटेंशियल. तो इफ यू पुट दिस वैल्यू ई वी नॉट हियर इंस्टेड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो विल गेट दिस इक्वेशन ई वी नॉट इज इक्वल टू दिस. तो नाउ वी नॉट कम्स आउट टू बी पोटेंशियल comes out to be equal to h by e f minus omega minus work function divided by e. तो यहाँ पे जो now you will see the relationship between h and f, and here the slope is coming out to be h by e, and that's why this slope is constant because h is constant, e is constant. So that's why it does not depends upon your जो हमारा जो here the slope of your v and f. ठीक है, slope of your stopping potential and f का जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर मटेरियल. ठीक है, फॉर कैल्शियम के लिए भी स्लोप सेम होगा, सोडियम के लिए भी स्लोप सेम होगा, पोटेशियम के लिए भी होगा, सीजियम के लिए भी होगा. इन सब के स्टॉपिंग पोटेंशियल इन सब की जो होगी मिनिमम फ्रिक्वेंसी विल बी चेंज. ठीक है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी विल बी डिफरेंट टू स्टार्ट अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट इन सब के जो स्लोप होगा इन सब का स्लोप सेम होगा, एंड दैट स्लोप वैल्यू इज h by e. ठीक है, दैट स्लोप वैल्यू इज h by e, एंड फ्रॉम हेयर ही कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ द स्लोप. ठीक है, मिलिकन हैज़ कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ द स्लोप, एंड दिस स्लोप multiply by e, he has got the value of the Planck's constant. He calculate the value of the Planck's constant like this. तो इसका कहने का मतलब है अगर आप फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्स बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको h by e बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल आपको करना पड़ेगा इफ़ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स. ठीक है, और अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म्स में, तो दिस इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी. इफ़ यू एक्सटेंड दिस, तो ये वाली जो टर्म आएगी दैट इज़ योर वर्क, दैट इज़ द वर्क फंक्शन. ठीक है, टोटल आपकी ये टोटल आपकी एनर्जी हो गई. दिस इज़ योर एच न्यू, दिस इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन. इसमें से दिस इज़ योर वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, एंड दिस वन इज़ योर काइनेटिक एनर्जी मैक्स. ठीक है, दिस वन इज़ योर काइनेटिक एनर्जी मैक्स. ठीक है, सो दैट इज़ एन एडिशन ऑन द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ठीक है, सो इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है, अगर मैं 1 हर्ट्स बढ़ाऊंगा, एक तो ये है कि सबका इट डज़ नॉट डिपेंड कि कौन सा आपका मटेरियल मेटल है, सबके साथ जो होगी आपकी जो स्लोप होगी दैट इज़ h by e. ठीक है, सबका स्लोप h by e होगा, एंड फ्रॉम हियर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है,
एंड नाउ इफ़ यू इंक्रीज़ द फ्रिक्वेंसी, अगर मैं फ्रिक्वेंसी को 1 हर्ट्ज़ बढ़ाता हूँ, इफ़ यू इंक्रीज़ द फ्रिक्वेंसी बाय 1 हर्ट्ज़, तो मेरा जो पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है दैट इज़ बाई h/e से बढ़ जाएगा मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, h/e वोल्ट से, राइट. सो दैट इज़ देयर इन आर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा कि लाइट हैज़ गॉट हिज पार्टिकल नेचर बैक अगेन, ठीक है. सो नाउ आफ्टर दिस इट वॉज कंक्लूडेड कि लाइट बिहेव्स एज अ वेव ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन एंड इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल व्हेन इट इज इंटरेक्टिंग विद द मैटर, ठीक है. सो बोथ थ्योरीज आर नेसेसरी एंड कंप्लीट टू डिस्क्राइब द फिजिकल फिनोमेना, हेंस द वेव नेचर एंड द क्वांटम नेचर आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. सो लाइट इज नॉट लाइक वन और द अदर, लाइट इज डुअल, ठीक है. सो दैट इज वेयर वी हैव प्रूव दैट आर रेडिएशन, आर लाइट इज डुअल नेचर, ठीक है, राइट. So we are having some question onto it. क्वेश्चन है हमारे, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन हम करेंगे इस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ठीक है. सो आई थिंक विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, इट्स ऑलमोस्ट टचिंग 1 आवर. सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में विल टेक ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है. अब थोड़े क्वेश्चंस और थे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, एंड इन दिस लेक्चर आई वाज सपोज टू कवर अप 3-4 क्वेश्चंस, ठीक है. 3-4 क्वेश्चन है, उसके बाद देर आर सर्टेन मोर क्वेश्चंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है. तो विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस, राइट. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ऑल राइट, थैंक यू.